السلام علیکم میرے ویورز دوستو، آج ہم شروع کر رہے ہیں کمپیوٹر کی کلاس بالکل بیس سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ مجھے کچھ دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کمپیوٹر کی کلاس بیس سے لیں، جیسے میری بیبی ہے ایسے میرے دوستوں کی بھی بیبی ہے جن کو بیس سے بچے سیکھیں گے کمپیوٹر تو ویری ایزی، اور یہ کلاس صرف بڑے بچے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، بلکہ جو بچے گریڈ 1 میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ ٹیچ کر رہا ہوں۔ تو پلیز کیئرفلی میں جو کلاس لینے سے پہلے کچھ چیزیں جو بتانا چاہ رہا ہوں، تو جب آپ کلاس لے رہے ہیں تو فل فوکس رکھیں کلاس پہ، اور بعد میں پریکٹس بھی آپ کو کرنی چاہیے۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں، ہم کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو فرسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے آج کل گھر میں کوئی بھی جیسے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر لے کے آتے ہیں تو بیس ہوتا ہے کہ پہلے اس کو یوز کس طرح کیا جائے، اس کو چلایا کس طرح جائے کمپیوٹر کو۔ تو کمپیوٹر لے تو لیا مگر اس کو یوز کس طرح کریں، تو اس کے لیے میں آج اسپیشلی کلاس لے رہا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ آگے اس طرح کر سکتے ہیں کہ جیسے پہلے تو آپ کو کمپیوٹر کی جو تھیوری ہونی، تو فرسٹ میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کمپیوٹرز ہمارے پاس کس طرح کے کمپیوٹرز ہوتے ہیں۔ ایک تو سمپلی ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، پہلے جو شروع میں آتے تھے کمپیوٹر وہ کس طرح آتے تھے، میں آپ کو اس کی پکچر دکھا دیتا ہوں۔ پہلے شروع میں جو ہمارے پاس کمپیوٹر آتے تھے اس طرح آتا تھا یہ کمپیوٹر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس سی پی یو کہلاتا تھا، اس پورے سسٹم کو ہم ٹاور پی سی کہتے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس سی پی یو کہلاتا تھا، اس کے بعد یہ مانیٹر ہوتا تھا، پھر کی بورڈ اور ماؤس۔ شروع میں کمپیوٹر اس طرح آتے تھے، میں اسپیڈ پہ نہیں جا رہا، اس کی کنفیگریشن پہ نہیں جا رہا، صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آج کل جو لیٹسٹ کمپیوٹر آ رہے ہیں اس طرح تو ایک کمپیوٹر یہ آیا ہوا ہے، جس طرح یہ کمپیوٹر میں سمپل دکھا رہا ہوں، اس کو ہم کہیں گے آل ان ون۔ یہ کیا ہے؟ آل ان ون۔ آل ان ون کی میننگ کیا ہے کہ دیکھیں اس میں یہاں سے جو ٹاور نظر آ رہا تھا آپ کو سی پی یو، وہ بالکل غائب ہو گیا، جسٹ لائک جیسے آپ کا لیپ ٹاپ ہے اسی طرح۔ یعنی آل ان ون اس کو کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہی مانیٹر ہے اور اسی کے اندر سی پی یو ہے اور اسی کے اندر سی ڈی روم لگی ہوئی ہے، یعنی سارے فنکشنز اس کے اندر ہی ہیں۔ آپ صرف اس کو ایک پاور کیبل کی نیڈ ہے، باقی کوئی کیبلنگ نہیں چاہیے، اور کی بورڈ بھی وائرلیس ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے کمپیوٹر آئے اور ٹچ اسکرین آ گئے ہیں، وہ ان کو ہم کہتے ہیں آل ان ون لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں۔ تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہم لیپ ٹاپ جسے کہتے ہیں، جسٹ لائک لیپ ٹاپ ہی ایک ہی طرح کا آل ان ون ہی اس کو کہیں گے، کیونکہ دیکھیں اس لیپ ٹاپ کے اندر بھی یہ جو ایریا ہے سی پی یو، جو پروسیسر یونٹ ہے، جو فنکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر ہی ہوتے ہیں، اور یہ اسکرین ہوتی ہے۔ بہت سارے لیپ ٹاپ ٹچ اسکرین پہ ہوتے ہیں اور بہت سارے ٹچ اسکرین نہیں بھی ہوتے، اس کی کیمرہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں آل ان ون، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ لیپ ٹاپ۔ تو بہرحال فنکشن سارے کمپیوٹر کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ ابھی رہی بات یہ کمپیوٹر ہے، مگر اس کے اندر کیا کس پہ کام ہوتا ہے، کیسے یوز ہوتا ہے، ابھی اس لیول پہ ہم جا رہے ہیں۔ اس جو کمپیوٹر کے اندر یوز کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں آپریٹنگ سسٹم۔ اگر آپریٹنگ سسٹم ہوگا تو آپ کمپیوٹر کو آگے فردر یوز کر سکتے ہیں۔ ابھی آپریٹنگ سسٹم کیا ہے؟ سمپل جیسے آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہو، سمپل آپ موبائل یوز کرتے ہو، موبائل میں اینڈرائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ موبائل جو سافٹ ویئر آپ موبائل یوز کرتے ہو اس کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہو، واٹس ایپ یا فیس بک، کوئی بھی سافٹ ویئر اگر آپ موبائل میں انسٹال کرتے ہو تو آپریٹنگ سسٹم موبائل کا اینڈرائڈ ہوتا ہے، مگر اس کے اوپر آپ کوئی بھی سافٹ ویئر یوز کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایزیلی۔ اسی طرح کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس کا اپنا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، جو آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر ہی کہلاتا ہے، وہ انسٹال ہوتا ہے آپ کی ڈیوائس پہ، آپ کے کمپیوٹر پہ۔ اس سافٹ ویئر کے اندر جا کے آپ اور سافٹ ویئر جا کے انسٹال کرتے ہیں اپنے مقصد کے، جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات بھی انشاءاللہ آپ کی کلیئر ہو گئی ہوگی۔ ابھی آپریٹنگ سسٹم کون سا ہوتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم جو کمپیوٹر میں ہوتا ہے ونڈوز، جس کو ہم کہتے ہیں ونڈوز۔ پہلے آتی تھی جو بھی ونڈوز اولڈ ورژن، اس پہ میں نہیں جا رہا، ابھی لیٹسٹ جو چل رہی ہے ونڈوز 10 چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ونڈوز 7، ونڈوز 8.1، ونڈوز 10 لیٹسٹ ہے جو آپ کے پاس
आई है, मगर अभी तकरीबन थोड़े फीचर्स नए हो जाते हैं, मगर विंडोज आपको नजर जो आएगी सेम आएगी। तो आगे जाते हैं क्लास के बाद। उसके बाद ये तो मैंने आपको सिंपली बता दिया है, कीबोर्ड का मैंने ये रखा हुआ है ताकि आपको पता पड़े कि मैं क्या कर रहा हूँ किस तरह। तो अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं, इसके बाद हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन लेनी है कीबोर्ड की। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कीबोर्ड जानना बहुत जरूरी है। जब तक आपको कीबोर्ड का पता नहीं होगा तो आप, क्योंकि कीबोर्ड का नाम ही की है, जब तक की का पता नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मोस्टली ये कीबोर्ड, आप चाहे लैपटॉप हो आपका, चाहे टावर पीसी हो आपका, चाहे ऑल इन वन कंप्यूटर हो, कीबोर्ड आपको सब में एक जैसा मिलेगा। थोड़ी सी डिजाइन चेंज होगी, ज्यादा कीज होगी, बड़ा होगा छोटा होगा, मगर कीबोर्ड सेम होगा। किसी की कीज, ये जो आपकी फंक्शन कीज होती है यहाँ होगी, किसी की यहाँ होगी, डिजाइन चेंज होगी, मगर ढूंढेंगे देखेंगे तो आपको इस तरह मिलेगा। तो फर्स्ट हम आ जाते हैं फंक्शन कीज पे। कीज के पास फंक्शन कीज हमारे पास जो नजर आ रही है F1 to F12, ये मोस्टली फंक्शन कीज यूज होती है। आगे जाके मैं यूज करवाऊंगा आपको, मगर सिंपली इनका काम जो ज्यादा यूजेज नहीं होता, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे इंस्टॉलेशन और बैकअप में जाने के लिए या बायो में जाने के लिए यूज करते हैं। और भी फंक्शंस बहुत हैं, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। फिलहाल ये कीज इतनी यूज होने वाली नहीं है आपके लिए। जो आपको यूज होने वाली कीज है वो आपके पास आ रही है यहाँ पे। एक तो न्यूमेरिक कीज है, ये नंबर्स कीज कहलाती है। दूसरा ये आपके फंक्शंस कीज, जो इसी के नीचे ये ABCD अल्फाबेट कीज है, ये यूज होती है ज्यादा। ठीक है, ये कीज आपकी ज्यादा यूज होगी। उसके बाद जैसे ये लिखा हुआ है नॉर्मल कीज, ये नॉर्मल कीज इसको बोलते हैं स्पेस बार। ये स्पेस बार है, जब इसको क्लिक करते हैं, टाइपिंग करते हैं, फिर इसको क्लिक करते हैं तो स्पेस होता है। स्पेस देने के लिए ये स्पेस बार यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कीज, डायरेक्शन कीज। ये डायरेक्शन कीज अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, आप एरो को मूव कर सकते हैं एनी टाइपिंग के लिए, तो आप ये डायरेक्शन कीज भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल कीबोर्ड, यही सेम न्यूमेरिकल कीज इधर भी है, यही सेम न्यूमेरिकल कीज यहाँ पे भी है, मगर यहाँ पे डिफरेंट क्या है, एक अलग से आपको न्यूमेरिकल कीबोर्ड दिया हुआ है कि आप इसको मल्टी यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे ये फॉरवर्ड स्लैश दिया हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश देने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे शो हो रहा है डिवाइड। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कोई चीज डिवाइड कर रहे हैं, आप मैथ यूज करना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप उस चीज को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद स्टार दिया हुआ होता है, स्टार मतलब मल्टीप्लाई की साइन है कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद माइनस है, माइनस यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्लस है, प्लस यूज कर सकते हैं, यानी कीबोर्ड फंक्शनली कीबोर्ड को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ रही है लॉक कीज, ये आपको कीज शो कर रहा है, ये लॉक कीज, यहाँ पे लॉक कीज होती है, ये इसको पुश करेंगे तो आपका लॉक हो जाएगा कीबोर्ड। ये आगे जाके मैं बताऊंगा और क्या काम होते हैं इसका, मगर फिलहाल आप ये लॉक कीज का यहाँ पे आप देख लें कि न्यूमेरिकल लॉक का बटन नीचे, अगर इसको आप क्लिक करेंगे न्यूमेरिकल लॉक को, तो यहाँ पे लाइट ऑन होगी। इसका मतलब आप यहाँ से न्यूमेरिकल कीबोर्ड से कुछ भी 1 2 3 4 5 जो भी कीबोर्ड से पुश करेंगे वो वर्किंग होगा। अगर ये ऑफ करेंगे तो यहाँ से आपके कीज नहीं जाएगी आगे। उसके बाद कैप्स लॉक, ये कैप्स लॉक को आप इधर देखेंगे तो कैप्स लॉक का बटन जो है आपको, बटन जो शो हो रहा है यहाँ पे, कैप्स लॉक को क्लिक करेंगे तो यहाँ लाइट ऑन होगी, यानी आप कैप्स वर्ड्स लिखेंगे, यानी कैपिटल वर्ड लिखेंगे, यानी ए है तो एक बड़ी ए लिख सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं फुल ये इंट्रोडक्शन आगे जाके और भी दे रहा हूँ उसमें। अच्छा, इसमें आगे एक चीज और भी है, जिस तरह देखें ये जो 1 2 ये नंबर नजर आ रहे हैं हमें, तो यहाँ इस बटनों में डबल कीज शो हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे यहाँ पे हम आ रहे हैं तो 3 के ऊपर हैश साइन है। तो हैश किस तरह हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखें शिफ्ट लिखा हुआ है, शिफ्ट को
पुश करेंगे यहाँ पे, यानी शिफ्ट को हम पुश रखेंगे, पुश करेंगे, पुश करने के बाद यस शिफ्ट को पुश करके और हम जैसे 3 को पुश करेंगे तो हैश आएगा। अगर विदाउट शिफ्ट, हाँ विदाउट शिफ्ट पुश करेंगे तो 3 लिखा आएगा। अगर शिफ्ट पुश करके 3 को पुश करेंगे तो हैश साइन आएगी। तो हम इसी तरह मल्टी कीज यूज कर सकते हैं, एक ही कीज से दो कीज यूज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ कीबोर्ड का हो गया, फिर आगे जाते हैं। कीबोर्ड आपको समझ आ गया होगा, मगर जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो मोर और ज्यादा समझ आ जाएगा आपको। चलें जी अभी आगे जाते हैं सिंपली, और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम शुरू करते हैं तो कुछ दोस्त जैसे कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो आपको पता है कंप्यूटर ऑन कहाँ से होता है, जहाँ आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, ऑल इन द वन हो, उनके कहीं ना कहीं कंप्यूटर के पास बटन होता है जिसको आप पुश करते हैं, कंप्यूटर ऑन हो जाता है। मगर कंप्यूटर बंद कैसे करते हैं? जब बंद करना होगा कंप्यूटर, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टावर पीसी हो, चाहे ऑल इन द वन हो, उसको हम बंद कैसे करेंगे कंप्यूटर को? अगर आपको ऑफ करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे विंडोज पे आके क्लिक करें, और जैसे क्लिक करेंगे फर्स्ट बटन मिलेगा आपको, फर्स्ट स्विच, फर्स्ट बटन यहाँ पे देखेंगे पावर लिखा आएगा, ठीक है। जैसे हमने पावर पे आके क्लिक करना है तो यहाँ पे आपसे पूछेगा शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप। तो रीस्टार्ट तो हम जब क्लिक करेंगे तो बंद होके वापस ओपन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? शट डाउन। जैसे शट डाउन करेंगे तो ये प्रॉपरली कंप्यूटर आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मगर क्लोज करने से पहले आप श्योर कर लें कि आपकी कोई एप्लीकेशन खुली हुई है, ओपन है, तो आप उस एप्लीकेशन को इस तरह बंद करें और फिर आप जाके यहाँ से शट डाउन कर दें, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर प्रॉपरली बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, यानी आपने बिल्कुल राइट वे पे आपने कंप्यूटर को क्लोज कर दिया। अभी हम आगे जा रहे हैं। इसके बाद हम क्लास ले रहे हैं, बेसिक क्लास ले रहे हैं बच्चों का, बड़ों का, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए माउस के अंदर और कीबोर्ड के अंदर। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। पहला सॉफ्टवेयर जो आमतौर पे हर कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है उसको हम कहते हैं MS पेंट। जैसे क्लिक करते हैं, अगर आपको नजर ना आए तो आप यहाँ आके पेंट लिखेंगे अपने कंप्यूटर पे। अगर हाँ नजर ना आया, PAINT पेंट, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 3D पेंट और पेंट, सिंपल नॉर्मल पेंट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो पेंट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो पेंट जैसे आई तो पेंट का जो बैकग्राउंड पे काम करेंगे उसको यहाँ से ड्रैग करके छोटा बड़ा बैक को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे मगर कॉर्नर पे जो आपको डॉट नजर आ रहा है, इसी कॉर्नर पे आप उसको कर सकते हैं। तो पेंट का फर्स्ट ये आपका है वर्किंग एरिया, जिसमें हम वर्क करेंगे, काम करेंगे, और इसके बाद ये आपके पास टूल्स नजर आ रहे हैं, इस टूल्स को यूज करेंगे, ठीक है। टूल्स और शेप्स, ठीक है, वेरी गुड। अभी हम आ रहे हैं फर्स्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ, उसके अंदर पेंसिल, ठीक है। अभी देखिए पेंसिल को हम जब यूज कर रहे हैं, क्लिक करेंगे तो देखिए पेंसिल ब्लैक लिख रही है, ठीक है। तो ब्लैक कलर कहाँ से पिक कर रही है पेंसिल? यस, कलर 1 से ब्लैक कलर पिक कर रही है। और माउस का बटन कौन सा पुश कर रहा हूँ? लेफ्ट माउस का बटन पुश करेंगे, पुश करके और ड्रॉ करेंगे तो पेन वर्किंग होगा, पेन वर्किंग करना शुरू करेगी। अगर पेन की ये लाइन की साइज बड़ी करनी है तो मैं यहाँ पे आके यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, तो देखें पेन की जो नोक की साइज है वो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम चाहें। तो ये देखें माउस का लेफ्ट और माउस का राइट दो साइड है, दोनों को यूज करना चाह रहे हैं कलर, तो देखें लेफ्ट में ब्लैक लिया हुआ है, फिर आपको सेकंड कलर पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आके आप दूसरा कलर ले लें। और जब आप माउस से राइट साइड क्लिक करके ड्रॉ करेंगे तो ऑरेंज इट्स मींस सेकंड कलर यूज हो रहा है। लेफ्ट यूज करेंगे तो ब्लैक। देखें इस तरह, अगर मैं लेफ्ट वाला वापस आके देखें
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे रख के और बोलते हैं ये ब्लैक कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना, जैसे देखें यहाँ पे ऑरेंज है, मैं यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे ये कलर ले रहा हूँ ग्रीन, तो कह रहे हैं सर मैंने तो यहाँ पे ब्लैक को चेंज करना चाहा मगर हो रहा है क्या ग्रीन चेंज, में क्या करूँ। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पे क्लिक करके और बाद में आपको यहाँ से कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप सिलेक्ट किया तो अभी दोनों कलर सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आप लेफ्ट को यानी लेफ्ट देखें, ये मैं लेफ्ट से ड्राइव कर रहा हूँ, ये देखें आओ मैंने यहाँ पे राइट कर दिया लेफ्ट, तो लेफ्ट से मेरा राइट हो गया पर्पल। यस और मैं लिखूं अभी राइट लिखूं तो देखें ये राइट से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो ग्रीन ग्रीन, तो ये अपनी माउस से मैंने राइट क्लिक करके ये कर दिया। वेरी सिंपल वेरी इजी। आपने प्रैक्टिस करना है तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद हम आगे जा रहे हैं। ये तो हमें क्लियर हो गई पेंसिल, ठीक है। पेंसिल के बाद नहीं, और पेंसिल क्लियर हो गई, पेंसिल की साइज हमें पता पड़ गया कि कोई भी साइज रख सकते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 4 स्टाइल हमारे पास है। 4 स्टाइल में से कोई भी स्टाइल हम लेके यूज कर सकते हैं, इजी। उसके बाद नेक्स्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट तो हाँ हमने कलर भी सीख लिए, यानी यहाँ से ये कलर पिक करना है, कौन सा कलर यहाँ से लेना है। एक और बात बता देते हैं, एडिट कलर, यानी ये कलर अगर आपको पसंद नहीं है तो भाई एडिट कलर से भी हम कलर ले सकते हैं। यहाँ से आके आप कोई भी कलर जो आपको सूट कर रहा है आप वो कलर ले लें जो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कलर, ठीक है, नहीं आ रहा, आप इसको ऐड कर दें तो देखिए ये कलर भी ऐड हो गया। देखें इसको भी यूज कर सकते हैं वो। चलिए अभी हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए शेप्स नजर आ रहे हैं, बच्चों को शेप्स बड़े पसंद होते हैं ना, ठीक है। चले हम शेप बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे आके एक शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ हार्ट बनाई। देखें इस हार्ट को, ये हार्ट बनाई मैंने, ये बड़ा छोटा साइज यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से मूव भी कर सकते हैं, सही है। मगर जैसे आपने आउटसाइड क्लिक किया अभी आप मूव नहीं कर सकते। पेंट है ये, कोई ग्राफिक्स का हाई पावर सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पेंट सिंपल है। तो आप इसको सिलेक्ट है तो मूव कर सकते हैं, जब अनसिलेक्ट कर दिया तो आप इसको मूव नहीं कर सकते। चलिए इसके बाद हम आगे जा रहे हैं कि यहाँ पे हम कुछ कार्टून ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्टून मैंने यहाँ पे आके और यहाँ पे क्लिक शेप में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे ये और शेप दे दिया और यहाँ पे भी मैंने शेप दे दिया। यहाँ पे नोजी बना दी और यहाँ पे माउथ बना दिया। फिर ये आइस बॉल बना लेता हूँ मैं इसके, ठीक है। ओके ये हो गया। अब इसके बाद इसमें मुझे फिल कलर करना है, ठीक है। फिल कलर के लिए ये देखें पेंसिल के बिल्कुल बराबर में फिल विथ कलर पे क्लिक करें और यहाँ से आके मैं ये स्किन कलर ले लेता हूँ यहाँ से आके। और अगर आपको ज्यादा स्किन कलर बनाना है तो यहाँ पे एडिट कलर्स में आए। एडिट कलर्स में आप आके देखें यहाँ पे जो कलर आपको सूट करता है इसको लाइट करें। कोई भी येलो या कोई भी कलर जो आपको सूट कर रहा है हल्का सा आप वो ले लें और इसको ओके कर दें, ठीक है। तो वो कलर आपका आ जाएगा और आप इसको फिल कर दें। ये फिल कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से आके ब्लैक कलर लिया इसको आई बॉल के लिए, आई बॉल मैंने बना लिया, ठीक है। फिर आप इसको नोज के लिए रेड कर दें तो उसको मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं इसके अंदर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप पे डिपेंड है आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलें हमें आसान है बहुत। अभी हमने यहाँ तक तो ये फिल कलर भी सीखा। अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं ब्रश टूल। जैसे पेंसिल थी ऐसी ब्रश ब्रश में बहुत सारे ब्रश हैं, पेंसिल है।
वेरी गुड। देखे कितने सारे यार, स्प्रे पर है। वो देखें इतने सारे स्टाइल ब्रश में पड़े हुए हैं। चले एक कोई लेके देख लेते हैं ये कैसा स्टाइल। ये स्प्रे करेगा। तो अभी स्प्रे तो नहीं चाहिए मुझे यार, मुझे ये तो हटाना था स्प्रे। मैंने जैसे इसको टाइप किया तो ये स्प्रे हो गया। अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो यहाँ से कंट्रोल कीबोर्ड से, देखें कीबोर्ड आपको नजर आ रहा है, कीबोर्ड से कंट्रोल पुश करूंगा और जेड पुश करूंगा। जैसे कंट्रोल जेड पुश किया तो ये क्या हो गया, अनडू। ठीक है, यानी मैंने एक स्टेप पीछे आ गया, यानी जो गलती की थी उसको मैंने रिमूव कर दिया। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड मतलब अनडू, यानी कोई भी आप मिस्टेक कर लेते हैं कंट्रोल जेड करेंगे तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। चलें, इसके बाद बुश में से हम इस पे क्लिक करके यहाँ से ये बुश ले लेते हैं। चलें, और यहाँ से ब्लैक कलर ले लेते हैं और इसका हेयर बना लेते हैं। Looks like Ron, but he's यस, इसके हेयर बनाते हैं हम, हेयर बनाते हैं। और क्या बन रहा है वो तो मुझे भी पता नहीं है। आंटी बन रही है, आंटा बन रहा है, बेबी बन रही है, या बेबी बन रही है ना। उन्हें को पता नहीं चल रहा क्यों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आसान है। चलिए, यहाँ तक तो आपको सिंपली पता पड़ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। इसके बाद ये आप बुश टूल पे आपने अंडरस्टैंड कर लिया, यहाँ से कोई भी शेप आप ले सकते हो। ठीक है, जो शेप आपको पसंद है आप यहाँ से जो डिजाइनिंग करनी है आपको डिजाइनिंग करें, फिल करें, जो आपको करना है करें, प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम आगे जाते हैं, टेक्स्ट टूल है। ठीक है, टेक्स्ट टूल का मीनिंग क्या होती है, हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करें। ठीक है, टेक्स्ट टाइप करें, यहाँ पे आके सिंपल टेक्स्ट पुश कर लेते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया आरिफ। ठीक है, आरिफ भाई, एक मैं दोस्त का नाम लिख रहा हूँ आरिफ भाई, उसकी मैं साइज यहाँ पे बड़ी कर देता हूँ, यहाँ पे आके 72। ओ यहाँ से देखें साइज मैंने बड़ी की। अभी मैंने नाम लिख दिया, अगर आप चाहें तो बड़ा और भी कर सकते हैं और चाहें तो इसके एक एक फाउंट के कलर भी चेंज कर सकते हैं, मगर जब तक ये सिलेक्ट है तो आप कर सकते हैं। जैसे आपने आउटसाइड पे क्लिक किया तो फिर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंपल पेरेंट है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे मैं आर को सिलेक्ट करके ऑरेंज दे रहा हूँ, आई को सिलेक्ट करके रेड दे रहा हूँ, एफ को सिलेक्ट करके येलो दे रहा हूँ, बी को सिलेक्ट करके ग्रीन दे रहे हैं हम, और एच को सिलेक्ट करके पर्पल दे रहे हैं, और ए को सिलेक्ट करके पिंक दे रहे हैं। तो देखें वो आई। ठीक है, यहाँ पे हमने नाम लिखा और आप इसको अभी तक कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जहाँ पे आपको चाहिए वहां पे आप मूव कर सकते हैं इसको, मगर जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया अब मूव नहीं कर सकते। मगर मूव करना है तो कर सकते हैं, मगर फिर राइट नहीं कर सकते, इसके ऊपर कलर चेंज नहीं कर सकते। देखिए मूव कैसे करेंगे, ये है सिलेक्ट। सिलेक्ट टूल को आपने यहाँ से देखें, ये सिलेक्ट टूल उठाया और यहाँ पे हर बाइक को उठाया और यहाँ से आपने मूव किया, मगर यहाँ पे ग्रीन क्यों आ गया, क्वेश्चन। क्योंकि ग्रीन कलर है। यस, क्योंकि बैकग्राउंड में ग्रीन कलर लिया हुआ है। अगर आप बैकग्राउंड में देखें, कंट्रोल जेड करते हैं हम वापस इसको, तो वापस आ गया। यहाँ पे आके हम व्हाइट कलर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे कलर 2 का व्हाइट कलर लिया, और अभी हम इसको सिलेक्ट करके उठा के मूव करेंगे तो देखें बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं हुआ। तो
چلے دوستوں میرے پیارے بچوں، یہاں تک کلاس آپ انڈرسٹینڈ کریں، فرسٹ کلاس آپ کا آج میں نے لیا، آپ اس کو انجوائے کریں، پریکٹس کریں. ابھی یہ جو ڈرائنگ ہے، ابھی اس میں لاسٹ چیز میں بتانے لگا ہوں، دوسرے آپشن کل کر لیں گے، مگر اس میں لاسٹ چیز بتا رہا ہوں میں یہ وہ کہ اب اس ڈرائنگ کو آپ چاہتے ہیں کل دیکھیں، تو آپ کو کل دیکھنے کے لیے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے فائل میں آتے ہیں، اس ایک آپشن ہمارے پاس ہوتا ہے سیو. جیسے بولتے ہیں بڑے بڑے بولتے ہیں آپ اپنے منی سیو کرو، پیسے سیو کرو، اپنا ٹائم سیو کرو، ایجوکیشن اچھی لے لو، ایسے بولتے ہیں نا. ہاں تو ایسے اس کو سیو. ایسے ہی ہم یہاں پہ بھی اپنا جو اپلیکیشن بنائی، جو پیج بنایا، جو ورک کیا، اس کو سیو کریں. ابھی دیکھیں سیو کہاں ہو رہا ہے. سیو کے لیے ایک چیز میں بتا دوں، آپ کو سمجھا دیتا ہوں سیو ہوتا کیا ہے. اس کے لیے میں نے یہ ایک آپ کے سامنے الماڑی رکھی ہوئی ہے، یہ الماڑی، ٹھیک ہے. سیو ہوتا ہے آپ کی ہارڈ ڈسک میں. ہارڈ ڈسک کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، یعنی ایک میموری ہوتی ہے. جیسے آپ کے پاس موبائل میں میموری کارڈ ہوتا ہے، موبائل میں بلٹ ان میموری ہوتی ہے، جو آپ فوٹو نکالتے ہو وہ موبائل میں سیو ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس کے اندر جو بھی چیز سیو کریں گے وہ ہماری سیو ہو جاتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں ہارڈ ڈسک. ہارڈ ڈسک کے پارٹیشن بنے ہوتے ہیں، یعنی جو ڈرا بنے ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں یہ ڈرا اے بی سی ڈی، یہ ڈرا. آپ اگر اس ڈرا میں اپنے کلوتھ رکھو گے تو آپ کو اس ڈرا میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے یہاں رکھے ہیں تو یہاں ملیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ چیز سیو کر رہے ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ سیو کہاں کر رہے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر میں جیسے آپ کمپیوٹر میں آتے ہیں تو جس پی سی پہ کلک کرتے ہیں، دیکھیں یہ میری دو ڈرا کمپیوٹر میں، سی اور ڈی. تو اگر میں ڈی میں رکھوں گا اپنی چیز تو مجھے سی میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر ان سب کا ایک پارٹیشن ہوتا ہے، یعنی ڈیسک ٹاپ سی کے اندر ہوتا ہے. یہ ڈیسک ٹاپ، تو ڈیسک ٹاپ کہتے ہیں اس ایریا کو، یہ ایریا. اگر کوئی بھی چیز آپ سیو کریں گے ڈیسک ٹاپ رکھیں گے تو یہاں ملے گی. کوئی چیز آپ ڈی کے اندر فولڈر بنا کے رکھیں گے تو آپ کو ڈی میں ملے گی. تو ہم یہاں کے اس کو فی الحال سیو کر لیتے ہیں ڈیسک ٹاپ پہ، تاکہ میں پھر آگے جا کے آپ کو دوسری چیزیں بھی سکھاؤں. ہم آتے ہیں یہاں پہ، دیکھیں ڈیسک ٹاپ پہ کلک کیا اور یہاں پہ آ کے میں نے فائل ڈیسک ٹاپ پہ رکھا اور آرٹ کے نام سے، اور یہاں پہ آ کے میں نے جے پی جی فائل دے دی، جے پی جی پکچر. یہ بھی فارمیٹ آگے جا کے سمجھاؤں گا میں آپ کو جے پی جی کیا ہوتی ہے. سیو کر دیا. ابھی دیکھیں اس فائل کو، یہ سیو ہو گئی. اس کے بعد آپ اس کو کلوز کر دیں. جیسے کلوز کر دیا یہ فائل دیکھیں یہاں پہ ڈیسک ٹاپ پہ آپ کے پاس سیو ہو گئی. جب چاہیں آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں. اس کے اوپر سمپلی کلک کریں تو یہ فائل آپ کی اوپن ہوگی. آپ اس کو پینٹ میں جا کے واپس اوپن کر کے ڈی یوز کر سکتے ہیں. واپس کو جس میں آپ کو انٹری کرنی ہے، کچھ لکھنا ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں. تو فی الحال آج کے لیے مجھے اجازت دیں، یہ کلاس لے لیں، پھر انشاءاللہ کل کلاس میں دوسرے کلاس میں ملتے ہیں. اللہ حافظ، بائے بائے.